Good evening, ladies and gentlemen. Tonight, once again, the dialogue lobby within India has resurfaced. A familiar group of 11 renowned for pro-Pak overtures is once again pushing the talks agenda, conveniently picking up from Taliban's desperate outreach to the government of India. This lobby is in a letter to the Prime Minister, not linking Taliban to radical terror. This letter clearly attempts to whitewash the sins of Taliban and puts the onus of dialogue on India. What's shocking is the language used in the letter, which welcomes the positive assurances of Taliban. Positive assurance? I mean, what are these so-called intellectuals thinking? The welfare of Afghan is one thing, but seeking legitimacy of Taliban is completely another issue. The authors of this letter are the usual suspects who love visiting the literary circles of Pakistan and being critical of the government of India. Tonight, there are three questions that confront this particular lobby. Why is there no outright condemnation of Talibani terror in this letter to the Prime Minister? While admitting there is a threat, why is this group putting the onus on the Indian government to talk? Why isn't this lobby condemning persecution of minorities by Taliban while appealing to India? And finally, how are they even taking Taliban's assurances at face value, considering their violent track record? And that, ladies and gentlemen, brings me to the legitimate question on the News Hour tonight. What is the urgency of pushing for Taliban's recognition? That's the question and the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. And joining me tonight on the big debate, Mr. Gaurav Bhatia, National Spokesperson of the BJP, Sushant Sareen, Senior Fellow at the ORF, Tehseen Poonawala, Political Analyst. But my first question goes to Mr. Ved Pratap Vaidik, Journalist and Signatory of this letter to the Prime Minister. Ved Pratap Vaidik ji, सवाल सबसे पहला ये है कि आज जो आपने पत्र लिखा है, एक मैसेज जो आपने भेजा है प्रधानमंत्री को, it takes account of all the problems that still exist in Afghanistan. You are making appeals to Afghanistan, which is welcome. You are making appeals to Taliban, which is welcome. You are telling them that Afghanistan should not become a breeding ground for terror. But at the same time, your appeal to the government of India is what is so surprising. You say India should continue to engage with Taliban to achieve the objectives set out in this appeal. We welcome the government's first official acknowledgement of its engagement with Taliban in Doha and the positive assurances given by the latter. I want to ask you, आप क्या ये suggest कर रहे हैं कि दुनिया भर और भारत definitely तालिबान को trust कर सकता है? ट्रस्ट करना जरूरी नहीं है, बात करना जरूरी है। आप याद करें कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो पांडव कौरवों को ट्रस्ट नहीं करते थे, कौरव पांडवों को ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन सूर्यास्त के बाद बात करते थे। आप ये देखें कि 16 साल तक पोलैंड में जब कोल्ड वार चल रहा था तो चीनी राजदूत और अमेरिकी राजनयिक बैठ के लगातार 16 साल तक बात करते रहे। एक दूसरे के खिलाफ नेता लोग बयान देते थे, फौजें तैयार रहती थी, बम्बार्ड करने की तैयारी होती थी। माओ से तुंग जो है अंडरग्राउंड कई टनल्स बनाते थे बचने के लिए कि अमेरिकी बम डाल देंगे, लेकिन बात भी जारी रहती थी। हमने बात की वकालत की है और मुझे खुशी है, मैं नरेंद्र मोदी सरकार की, हमारे विदेश मंत्रालय की बहुत प्रशंसा करता हूं कि उसने बात शुरू कर दी है, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो बड़ा अवसर हमारे हाथ से फिसल सकता है। तालिबान पिछले 25 साल में बहुत बदल गए हैं, नई पीढ़ी आ गई है। तालिबान संगठन मूलतः गिलजई पठानों का संगठन था, लेकिन आज उसके अंदर पोपलजई, करजई, अहमदजई, मोहम्मदजई, कई तरह के पठान शामिल हैं। आज की तस्वीरें आपने देखी हैं, किस तरह से टैंक,
वहां एयरपोर्ट पर हैं, किस तरह से मजलूम लोगों पर आज भी अत्याचार जारी हैं। और क्या मैं आपको बता सकती हूं कि उनके जो फोक सिंगर हैं, क्योंकि म्यूजिक इस्लाम में अलाउ नहीं करता है, तो फोक सिंगर को घर से निकाल करके उन्होंने मार डाला। आप कह रहे हैं तालिबान बदल गया? नहीं, आंखें नीचे बैठे हैं आप, और आप माओ सेतुंग की बात कर रहे हैं, महाभारत की बात कर रहे हैं। ये 21वीं शताब्दी है वैदिक साहब। हाँ, आपने जो तथ्य पेश किए हैं वो बिल्कुल ठीक है, और मैं आपकी भावना को समझता भी हूँ, उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन एक बात जानिए कि तालिबान कोई एक ऑर्गेनाइज संगठन नहीं है। पाकिस्तान में 3 शूरा काम कर रहे हैं, मिरान शाह शूरा, क्वेटा शूरा और पेशावर शूरा। इसके अलावा तालिबान के अलग अलग संगठन पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर फैले हुए हैं। एक कोई बिरादर कह दे या कोई और कह दे और उसको सारे लोग मान लें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहीं स्पोरेडिक इवेंट्स होंगे, उनको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको हम कंडेम करेंगे, वो बुरे हैं, गलत हैं, बिल्कुल। तो आज आप कंडेम करिए, हाँ, बिल्कुल आज आप कंडेम करिए कि जो वहां औरतों और बच्चों के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। वहां हिंदूज और सिख्स के साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हिंदू और सिख के साथ क्या हुआ है? गुरुद्वारे में तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, उन्होंने कहा है कि आपको हम सब सुरक्षित पहुंचाएंगे, किसी हिंदू और मुसलमान को पहुंचाएंगे, रखेंगे नहीं, रहने नहीं देंगे। देखिए उसमें 2 बातें हैं। ये बात थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अफ़गानिस्तान से अगर 25-30 लाख लोग अभी भाग जाएं तो कौन लोग भाग रहे हैं? सरकारी अफसर भाग रहे हैं, नेता भाग रहे हैं, व्यापारी भाग रहे हैं। अगर सबको भागने देंगे तो फिर करेंगे क्या? वो सरकार कैसे चलाएंगे? तो आप तालिबान की तरफदारी कर रहे हैं? नहीं, तालिबान की बिल्कुल तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं अफगानिस्तान की तरफदारी कर रहा हूं, तालिबान की तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तालिबान गलत करते हैं तो उनको सबसे ज्यादा सजा अगर कोई दे तो भारत को देना चाहिए। मैं तालिबान की तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। सुशांत सरीन जी, कम से कम मैं कंफ्यूज्ड हूं। ये तालिबान की तरफदारी नहीं कर रहे, कह रहे हैं डिफरेंट शूर हैं वहां, एक वॉइस में बोलते नहीं है, तो आप बात किससे करेंगे, एंगेजमेंट किससे करेंगे? आपको कुछ क्लैरिटी आ रही है? ये जो अपील गई है, ये अपील है क्या और ये चाहती क्या है? क्योंकि ये खुद ही वो सब चीजें कह रहे हैं जो दिख रहा है सबको कि तालिबान एक सुर में नहीं बोलती, तो आप एंगेज किससे करेंगे? So Navika, I have 5 or 6 observations to make, but I must make a disclaimer. Vaidik Saab is an old friend of my father's, so he's a respected elder, but I'm going to challenge him on everything he has said here. And I'm sure he'll take it in the right spirit. So firstly, this letter is utterly hilarious for its presumptuousness, and it is ridiculous for its pretentiousness, right? It's like as though, like a celebrated author believes that India's vaccination drive picked up after he wrote an article. I think these gentlemen have started believing that, the Taliban were just waiting for a letter dripping with pious sentiment to actually reform themselves. But I think more importantly, everything which they have written, there's nothing new in it, because this is precisely what in much better language the UNSC resolution asked for. This is precisely what the international community has been demanding of the Taliban. So there is nothing new in what these guys are saying. And if for them to think that because they've written this letter, the world is going to change, that's not going to happen. But now Mr. Vaidik says, if everybody leaves or all qualified people leave, how will they run the country? So they will not let them leave, or they should not let them leave. The point is, this is the choice that the Taliban made, that we will be such medieval monsters, we will be brutish, we will kill people, we will kill journalists, we will kill news anchors, we will kill civil society activists, we will kill virtually anybody who was even remotely intellectual. Did they not do it? They did it till 2 weeks back. They are doing it even today when they are hunting down people. Now people will obviously vote with their feet. This is the Taliban's responsibility. What? Because this is the impression they have given, that people are voting with their feet. That is point number 1. Now, Mr. Vaidik says, बहुत बदल गए हैं. कैसे बदल गए हैं? What have they not done in the last 2 weeks that they have occupied Afghanistan? Now, this is this Taliban apologia from these people when he says that there are these sporadic incidents.
you should not take them seriously. I turn back and say there are these sporadic and insincere comments and statements which are made. You should not take that seriously. You should see what is happening on the ground rather than going by their statements. He is telling me that I should go by the statement and not by what is happening on the ground. That is what the logic is. And then they have a certain gentleman in that group of people. You know, you should hear the kind of nonsense he goes on Pakistani television and spouts. But the guy is absolutely lost it. I don't know which world the guy comes from. I don't know what line he's trying to plug, the Chinese line, the Pakistani line, or whichever line. And probably he's living in some kind of an alternate reality. Then he talks about India, Pakistan, bhai banenge. Pakistanis have done everything what they have done over the last 20 years because one of the things they have always maintained is we want to get rid of India from there. And just because today a guy from the Taliban says, no, we are not going to do anything against us, on what basis are you just simply buying all the nonsense that they are spouting? So my point is, I will not go by his statement. Mr. Vaidik is saying don't go after sporadic incidents. I say don't go after sporadic statement. I will go after Absolutely incident. well said. Vaidik साहब wants to come in, but Vaidik साहब ये जो 11 लोग हैं, अब आजकल G23 का मौसम है तो G11 बना देते हैं इनको, तो ये जो G11 है, नटवर सिंह जी, यशवंत सिन्हा जी, अब इतनी दुहाई दी जाती है कांदाहार हाईजैक की, और उस वक्त जो भारत ने डील की थी तालिबान के साथ, ऑपोजिशन हमेशा इसका विरोध करती है, लेकिन शायद यशवंत सिन्हा जी भूल गए कि उस वक्त वो सरकार का एक हिस्सा थे और बहुत अहम हिस्सा थे उस वक्त उसी सरकार का जिसने तालिबान के साथ बातचीत की। मणिशंकर अय्यर, जिनका जिंदगी में सबसे बड़ा जो मसला है वो ये मसला है कि मोदी जी बन कैसे गए प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाला बन कैसे गया प्रधानमंत्री, नीच कहा जाता है कभी उनको, नाली का कीड़ा कहा जाता है कभी उनके द्वारा, और कभी तो ये भी कह दिया उन्होंने कि मैं पाकिस्तान से, इमरान खान से दुहाई कर रहा हूं कि कम से कम भारत में आकर मोदी जी को हटा दीजिए। जूलियो रिबेरो, नजीब जंग, सईद नकवी, केसी सिंह, माजिद मेमन, सुधींद्र कुलकर्णी, ये सारे मोदी बेटर्स ही इनका धर्म है, इनको और किसी धर्म से जाना नहीं जा सकता। तो वैदिक जी, आपसे ये सवाल क्यों ना पूछा जाए, क्यों शामिल हो गया इनके साथ? आप इनके साथ शामिल है, और हम ये क्यों ना माने कि ये कहीं ना कहीं मोदी को घेरने की एक कोशिश है और तालिबान को सडनली एक परवरदिगार बनाने की कोशिश। आप ये सवाल मोदी जी से क्यों नहीं पूछते कि वो हमारी सलाह के मुताबिक, हमारी राय के मुताबिक तालिबान से बात क्यों शुरू की उन्होंने? तालिबान ने मांगी मीटिंग, वहां हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं और उसमें भी एक मैसेज दिया। आप मुझे बताएं, आप सरकार में होते, आपका प्लेन हाईजैक हो गया होता, आप बात नहीं करते अपने लोगों को बचाने के लिए? प्लेन के हाईजैक करने की बात सुनाई तो सुन लीजिए, पूरी बात, अंदरूनी बात सुन लीजिए जो अखबारों में आज तक नहीं आई है, वो मैं बताता हूँ आपको। अटल बिहारी वाजपेयी जी तब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुझे यूनाइटेड नेशंस भेजा था। न्यूयॉर्क में तालिबान के तथाकथित एम्बेसडर, वर्चुअल एम्बेसडर जो थे अब्दुल हकीम मुजाहिद, जो अभी काबुल में है, परसों उनसे मेरी बात भी हुई, वो मुझसे मिलने आया करते थे। मैं जब लंदन आया तो मुझे अटल जी ने बताया कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया। मैंने टीवी चलाया, मालूम पड़ा, मैंने अब्दुल हकीम मुजाहिद को फ़ोन किया। अब्दुल हकीम मुजाहिद ने वहाँ से सैटेलाइट फ़ोन था उनके पास, मुल्ला उमर से बात की। मुल्ला उमर से दूसरे दिन सुबह पीर गैलानी ने लंदन में मेरी बात करवाई और उन्होंने जो शर्तें रखी, उस वक्त हमको प्लेन छुड़ाना था, वो शर्तें हमने मान ली। वो शर्तें क्या क्या हैं उसके बारे में मैं अभी पब्लिकली कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमारा प्लेन सुरक्षित छोड़ा गया। जसवंत सिंह जी गए थे दोपहर को, और मुझे अटल जी ने कहा था कि अगर जसवंत सिंह जी जाते हैं और प्लेन नहीं छूटता है तो आपको जाना पड़ेगा। मैं भी तैयार था, मैंने सूटकेस वगैरह बांध के रखा था कि मैं खुद जाऊंगा कंधार और मुल्ला उमर से बात करूंगा। मेरा कहना ये है कि हमें उनको ये मान के नहीं चलना चाहिए कि वो पाकिस्तान के एजेंट हैं और पाकिस्तान के कहने से भारत पे हमला करना चाहते हैं। नहीं, आंखें बिल्कुल नहीं, आंखें खोल के नाविका जी, आंखें बिल्कुल नहीं मीचना है, हमको बहुत सावधान रहना है। मैं रिकॉग्निशन करने का बहुत विरोधी हूँ, रिकॉग्निशन नहीं करना है, बातचीत करना है। और आप एक बात याद रखिए कि तालिबान कौन है? पठान है। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना तो इसमें सिर्फ गिलज़ई पठान थे,
वो अब्दुल हकीम मुजाहिद मुझसे मिलते थे तो मुझसे कहते थे आप हमारी तालिबान सरकार को रिकग्नाइज़ कीजिए। तो मैंने कहा मुझे आप लिस्ट दीजिए कि आपके एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है। सारे गिलजई पठान थे। पर इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी थी तालिबान ने, वो तो उन्होंने किया नहीं। आप एक बात तो सुनिए, आप किस बुनियाद पर उनसे बात करें? मेरी बात पूरी सुन लीजिए। तालिबान संगठन पिछले 25 साल में सिर्फ गिलजई पठानों का संगठन था। आज उसमें मुल्ला बिरादर कौन है? गिलजई नहीं है, वो पोपलजई हैं। और ऐसे अहमद जई, मोहम्मद जई, करजई, दुनिया भर के पठान उसमें हैं। और वो ही नहीं हैं, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, किर्गिज़ हैं, मुए सुर्ख हैं, तुर्कमान हैं, ये सारे लोग अब शामिल हो गए हैं। यानी वो एक इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। सिर्फ पहले वो मैंने बताया ना पठानों का था, और पठानों में भी सिर्फ गिलजी पठानों का था। दूसरी बात क्या है कि उनके बयानों पे ज़रा गौर कीजिए। पिछले 15-20 दिन में नहीं, लोग सिर्फ 15 दिन 20 दिन की बात कर रहे हैं। मैं उनको बराबर मॉनिटर करता रहा हूँ। पिछले 3 महीने में 3 बार तालिबान प्रवक्ता ने दोहा से कहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अल-कायदा का स्टेटमेंट पड़ा है। और यही बात मैं पूछना चाहती हूँ गौरव भाटिया जी से। गौरव भाटिया जी, आपने विस्तार में सुना वेद प्रताप वैदिक जी का क्या लॉजिक है तालिबान से बात करने का, रिकग्निशन ना देने का। क्या आप कन्विंस्ड हैं? क्या ये भूल रहे हैं कि अल-कायदा का भी एक स्टेटमेंट आया है और कल ही आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर आजाद हो, ये हमारी तालिबान को उन्होंने मैसेज दिया है कांग्रेचुलेटरी मैसेज के साथ। तो किस तरह तालिबान पे यकीन किया जाएगा? और आपकी यानी कि सरकार की जो बातचीत हुई है, क्या ये बातचीत है, क्या ये पहला कदम है रिकग्निशन की तरफ? आज देश को खुलकर बताइए। देखिए, मैं वैदिक जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, नाविका जी, और मैं केवल इतना कहूंगा कि भारत का हिस्सा हर नागरिक है ना, और वहां पे हम अधिकार की बात करते हैं, उसके साथ एक मूल कर्तव्य होते हैं। मूल कर्तव्य ये कहते हैं वैदिक जी कि जो भारत सरकार करेगी वो 135 करोड़ भारतीयों की आवाज बनेगी। बिल्कुल। आज भारत डिप्लोमेटिकली वो करेगी जिससे हमारे नागरिक सुरक्षित भारत वापस आए, बिल्कुल, जो राष्ट्र हित में हो वो हो, और जो भूमि है अफगानिस्तान की उसका उपयोग भारत के अहित में ना किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप लोग आउट ऑफ टर्न बोलते हैं तो कभी सोचिएगा कि कितना नुकसान आप भारत का करते हैं। और मैं आपके लेटर से 1-2 बातें बताता हूं। वैदिक जी, आपने हफीज सईद का इंटरव्यू किया था, वो आपकी स्वतंत्रता थी, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं कहता हूं, अगर मुझे अपनी स्वतंत्रता की कुर्बानी 100 बार देनी पड़ेगी भारत के हित में तो मैं दूंगा, उसी जवान की तरह जो अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। आपके लेटर में एक लिखा है बात, आर अपील टू तालिबान। मैं एक नागरिक होने के नाते इस पे आपत्ति दर्ज करता हूं, और क्यों करता हूं मैं बताता हूं। ये सरकार तय करेगी भारत की 130 करोड़ भारतीयों की आवाज बनके कि हमें तालिबान से डायलॉग करना है या डिस्ट्रॉय करना है। मैं आज नहीं बोल सकता हूं, मैं प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन एक अटूट विश्वास अपने प्रधानमंत्री में और अपनी वीर सेना में मेरा है। दूसरी बात, आपके जो पत्र में 2-3 बिंदु उठाए कितने गलत हैं, मैं आपको बताता हूं। आपने लिखा है कि मेरी भारत सरकार से अपील है कि आप बातचीत करते रहिए। वैदिक जी, अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति आती है कि भारत सरकार, जिसके बहुत ही एक्सपीरियंस सलाहकार है, वो मानते हैं इंगेज नहीं करना चाहिए, तो आप ऐसी अपील क्यों कर रहे हैं? सारे ऑप्शंस खुले रखना एक अच्छी डिप्लोमेसी का प्रमाण है। दूसरी बात, आपने कहा कोई भी धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, वहां इस्लामिक मुल्क बन रहा है और वहां हिंदुओं और सिखों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो अगर हिंदुओं और सिखों को यहां वापस लाया जा रहा है तो इसमें क्या गलत है? और दूसरी बात, आपकी जानकारी के लिए, बहुत से ऐसे लोग भी अफगानिस्तान से लौटे हैं जो मुस्लिम हैं। भारत ऐसा देश नहीं है कि मानवता की आंखों से देखे उसमें पक्षपात करे, ये जानकारी होनी चाहिए थी। और अंत कर रहा हूं तीसरी बात में, आपने कहा किसी भी राजनीतिक दल को ऐसा कोई सांप्रदायिक फायदा नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल वैसे आप बताइए, आज जो पार्टियां चुप हैं कि मैंने तालिबान की बुराई करी तो मेरा मुस्लिम वोट भारत में सटक जाएगा, छिटक जाएगा, हट जाएगा, ये भी तो सांप्रदायिक राजनीति है। खुल के तो बोलिए
जो वहां पे महिलाएं हैं वो हमारी ही बहनें हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। जो लाश हेलीकॉप्टर से लटकी घुमाई जा रही थी वो मानव अधिकारों का हनन है। किसी ने बोला यहाँ पे, बल्कि किसी ने नहीं बोला, कोई कॉन्डेमनेशन नहीं की। वहां कहा जा रहा है कि औरतें पढ़ेंगी नहीं, उन पे पाबंदियां होंगी, अगर पढ़ेंगी तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ेंगी, नौकरी नहीं जाएंगी, ये करेंगी वो करेंगी, तमाम वहां पे पाबंदियां हैं। यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की इतनी लड़ाई कि रोज सुबह उठ के सरकार को चैलेंज किया जाता है, लेकिन तालिबान अगर करे तो सही है, हमें मान लेना चाहिए। तहसीन, why these double standards? Why don't you come out and condemn? And Mr. Manishankar Iyer, the usual suspect, always on a side which is definitely not India's side, definitely west of India, northwest of India, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वो भाई भाई नजर आते हैं। इंडिया में कोई भाई भाई नहीं नजर आ रहा। Grateful for this debate, which is actually intellectually stimulating. So just a couple of points. I unequivocally condemn the Taliban. I think they're a terrorist organization. The problem comes when the MHA website of my union government does not list the Taliban as a terrorist organization. But I have a very specific question of Gaurav Bhai or Mr. Sareen, for whom I have a lot of respect. Our union government at the moment is speaking with Taliban. They spoke in Doha. They did the press release, which is the right thing to do. My very specific question, Gaurav Bhai, is if the stated objectives of these talks fail, God forbid they fail, what is the plan B India have? I ask this for two reasons. A, India to date does not know specifically how many Indians, I'm talking about Indian passport holders contracted with foreign companies, are still stuck in Afghanistan. They don't have this data, the union government. And B, the union government did request for talks with Taliban earlier in February 2021 in Qatar, which got leaked by Qatar, source Times of India, and it's come out because of brilliant journalists. What were those objectives of the talks? And those have clearly failed. So what happened with that? Can you please lighten us on these two very specific before I points? get in Gaurav Bhatia, before I get in Gaurav Bhatia, I just want to ask. Why have you not listed Taliban as a terrorist organization? I just want to ask Mr. Sushant Sareen one question. Mr. Tehseen Poonawala raises the question of what is our plan B. Does he know the plan A of Taliban for us to have a plan A, plan B, plan C, plan D? I mean, Taliban wakes up and does what it wants on any given day. Do you think they are abiding by any rules and regulations or any agreements that they've made with the, Americans or any other group? Sushant Sareen? Yeah, so Navika, that is precisely what everybody is wondering, because the Taliban... Just Mr. Sareen, may I respond to that? No, 1 minute. Hold on. I'm running out of time. One line. I just have one line too before you can add. I just want to add to it so Mr. Sareen can add. Just one line. I agree with you, Navika ma'am. I'm absolutely on the same page as you. That's why I'm saying Mr. Ajit Doval is a failure. His intelligence is absolutely failed. आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप अफगानिस्तान या पाकिस्तान का रिपोर्ट कार्ड तो बनाते नहीं। भारत सरकार का रोज रिपोर्ट कार्ड, रोज दिन में 4 बार उनकी परीक्षा होती है। सुशांत सरीन. So Navika, very quickly, 5 things I want to say very, very quickly. Number 1, this whole thing about this is precisely what people are trying to find out, because the Taliban are saying different things to different people and doing something entirely different on the ground. What exactly do they stand for? Number 1. Number 2, maintaining contact, opening a line of communication is not according recognition, legitimacy or endorsement to any organization. Number 3, Tehseen is asking a very polemical and a rhetorical question. Why haven't you banned the Taliban? We haven't even banned Boko Haram. We haven't banned 500 other groups. So you don't go around banning every group. If the Taliban were present out here, had some presence out here, we might consider banning them. I don't know how many other international groups we have banned. Two things I want to challenge. This is the space to watch out for. No quick conclusions and no quick decisions. Watch, measure, calibrate, then act. And that's what the government at least should be doing. Taking a short break, on the other side, Ravi Shastri speaking to me on his book, Stargazing, and dropping in by Virat Kohli on that interview. Stay tuned, don't go anywhere.